Hey, hi everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about intensity of lines. Okay, yeah. So basically, organic spectroscopy is very important from the CSIR exam point of view. Okay, so intensity of line plays a major role in organic spectroscopy. So how we can find it two ways. The one is Pascal's triangle and another one is non-Pascal triangle. Okay, so now question is when we can apply Pascal triangle and when we will apply non-Pascal's triangle. See, I will tell you about this. So when we are having nuclear spin is equal to 1 by 2, okay, then you will apply Pascal triangle. But in case of you are having I is greater than half, then you will apply non Pascal's triangle. Okay, see, जब भी आपके पास I इज इक्वल टू हाफ होगा तो अब आपको पास्कल ट्राइंगल यूज़ करना है. जब आपके पास नॉन पास्कल ट्राइंगल कब यूज़ करेंगे, जब आप I ग्रेटर देन हाफ होगा. चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं. तो जब लेट अस सपोज वी आर हैविंग n इज इक्वल टू 1 एंड I इज इक्वल टू हाफ. Okay, and we know very well know that the formula of number of line is 2 and I plus 1. Okay, so 2 and I plus 1. Yeah, so here we have n is equal to 1 and I is equal to half. So just calculate that. 2 into 1 into half plus 1. Yeah, so from 2 will cancel with 2 and we will left with answer 2. So here we have number of lines is equal to 2. Yeah, so here we get the answer. The number of lines we will get here, that is 2. ओके, सो अब आपको करना क्या है, जब भी आपके पास n की वैल्यू 1 दी होगी तो आपको जो रेशो होगी इंटीजर की वो हमेशा 1:1 में लेनी होगी. ठीक है, यानी कि नंबर अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ लाइंस की वैल्यू 2 है तो आपको क्या करना है 1:1. अगर 3 होता तो 1:1 लेते. ओके, एंड सो ऑन. सो नाउ वी हैव n इज इक्वल टू 1 एंड रेशो वी हैव दैट इज 1:1. अब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ लाइंस में से आपको -1 करना है, यानी 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो कितना बचेगा 1. तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आ जाएंगी 0. नंबर ऑफ ज़ीरो पे कितनी आ जाएंगी 1, यानी कि आपको एक ज़ीरो आगे लगाने हैं और एक ज़ीरो आपको पीछे लगानी है. ठीक है, बड़ा बेसिक सा है इसका क्राइटेरिया. तो अब आपको करना क्या, ऐड आपको दोनों ही करने हैं. अब आपको n इज इक्वल टू 2 के लिए दोबारा से फॉर्मूला डराइव करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं. 0 1 1 एंड 1 + 1 1:1 को भी आप इसके बाद ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 अब 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ गया. ठीक है, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1:2:1. Okay, so now we have to calculate n is equal to 3. Okay, so we are having 2 zeros above and below. Okay, so we will add the 2 digit. So we have 1 plus 1 2 3. So 1:3:1. This is our answer. Okay, yeah. So बड़ा easy सा concept है. Now we will have to calculate for n is equal to 4. So we will apply the same criteria as we applied above. Okay, so we are having ratio, that is, just calculate in your notebook and let me know in the comment section. So same 0 we are having. Okay, 1 0 above and 1 0 below. So we are having ratio 1:4:6:4:1. So this is our final answer. Okay, so बहुत ही easy था ये. अभी आपको same criteria follow करना है next examples में भी. चले, let's do it. So in next question we are having n is equal to 1 and I is also equal to 1, and we have learned the formula of number of lines, that how we can calculate, that is 2 and I plus 1. Okay, so same formula we will apply here. 2 into 1 into 1 plus 1, so we are having 3. Okay, here number of lines is equal to 3. So I told you earlier that आपको करना क्या है यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ लाइंस की वैल्यू 3 आ गई है. ठीक है, तो आपको रेशो हमेशा इंटीजर है 1 में ही रहेगी आपकी. तो यहाँ पे रेशो कितनी हो जाएगी 1:1:1. सो जब आपके पास n की वैल्यू 1 है तो आपकी रेशो कितनी है 1:1:1. क्या, सो जब आपको n इज इक्वल टू 2 दिया हो तब आपको करना क्या है, 0 बताइए कितनी होंगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Yeah, okay, so
आपके पास यहाँ पे 3 है, ओके, तो नंबर ऑफ़ लाइंस में से -1 करेंगे उतनी ज़ीरोज़ आएंगे, यानी कि आपके पास 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर बच जाएंगी। तो वही आपको क्राइटेरिया फॉलो करना है, 2 ज़ीरोज़ आगे लगाने हैं और 2 ज़ीरोज़ ही आपको पीछे लगानी है। ओके, सो वी आर हैविंग हियर दैट सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है। अब आपको ऐड 3 को ही करना है, तो फर्स्ट 3 को ऐड कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 को ऐड करिए, फिर नेक्स्ट 3 को ऐड करिए। आपको यही क्राइटेरिया सेम फॉलो करना है, ठीक है। तो जब आपके पास ये हो जाएगा तो आपके पास जो रेशो है वो कितनी आ जाएगी, 1 ratio, 2 ratio, 3 ratio, 2 ratio 1. So this is your answer. Okay, now we have to calculate for n is equal to 3. तो जब आपको n is equal to 3 करना है तो ज़ीरो वही 2 ज़ीरो ही रहेंगी, ऐसे ही कर दीजिएगा उसे भी सेम क्राइटेरिया के साथ। तो जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1 ratio, 3 ratio, 6 ratio, 7 ratio, 6 ratio, 3 ratio 1. So this is your answer. Okay, now what we have to do next, we have to calculate for n is equal to 4. तो वही 2 ज़ीरो आपको लगानी है आगे एंड 2 ज़ीरो आपको लगानी है पीछे। ओके, सो जब आप इसको सेम क्राइटेरिया के साथ फॉलो करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। सबसे पहले मुझे बताइए इसमें कि नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी होंगी, 2 × 4 × 1 + 1, या सो वी आर हैविंग 9 लाइन्स हियर। ओके, सो वी आर हैविंग रेशो 1 ratio, 4 ratio, 10 ratio, 16 ratio, 19 ratio, 16 ratio, 10 ratio, 4 ratio 1. So this is our final answer. All right. So let's do some more example. काफ़ी इजी है ये, इसको और एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं आपसे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल करते हैं। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग i इज इक्वल टू 5/2 n इज इक्वल टू 1 के। अब आप क्या करेंगे, मैंने जो आपको फॉर्मूला सिखाया वो n इज इक्वल टू 1 के लिए सिखाया है, ठीक है। जब भी आपके पास n की वैल्यू 2 या 3 होगी तब आप सेम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, सेम ट्रिक को नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, सो अब आपको करना क्या है, नंबर ऑफ़ लाइंस कैलकुलेट करिए फटाफट से। 2ni + 1 फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको नहीं भूलना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 2 × 1 × 5/2 + 1. Okay, so we are having 6 lines here. How many lines? 6 lines here. Okay, तो वही हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो रेशो कितनी हो जाएगी, 1 ratio 1 ratio 1 ratio 1 ratio 1 ratio 1. Okay, so 6 lines we are having basically here. Okay, so जब आपके पास n की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास ये रेशो आ जाएगी। अब मुझे बताइए कि नंबर ऑफ़ लाइंस हैं हमारे पास 6, तो ज़ीरो कितनी होंगी, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी। ओके, सो जब आपके पास n की वैल्यू 2 होंगी तो आपको करना क्या है, सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है। ज़ीरो कितनी होंगी, 5 ज़ीरो हो जाएंगी, कि 6 - 1 5, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 ज़ीरो। ओके, सो इनको वही सेम क्राइटेरिया के साथ फॉलो करिए यहाँ पर। तो रेशो आ जाएगी 1 ratio, 2 ratio, 3 ratio, 4 ratio, 5 ratio, 6 ratio, 5 ratio, 4 ratio, 3 ratio, 2 ratio 1. So this is your final answer. I hope this video will help you.